Okay, Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to this Society of Free Educators. This is uh, session number 36.1. As we all know that after every 6 sessions we have a podcast where all of you have to participate and give answers, and I am there to ask questions, and we also talk about things that are going on or all around with us. Apart from that, those who are new, I will suggest them to participate as much as they can, make this session as interactive as they want and as interactive as they can, because we are here to understand communication skills, and communication skills can be understood only in one way, that is practicing. So the more you practice, the more you will understand and the more you will get to learn it. So let's have a quick recap of what we have learned earlier. We understood the word roast, then snackable. Snackable is in see, snackable is an old word. It used to mean something that is easily digestible or something which is readily available so that you can eat it. But nowadays, since it's the age of internet, snackable is an online content which is available in video format or audio format or even written text format, which can be read easily and can be watched easily, which can be digested very easily. So this is snackable. Then we understood the language for negotiation. Then word root analysis of these four words: radix, ram or rami, reg or retro. And then pronoun agreement. We understood what is pronoun agreement, what are the rules of pronoun agreement. So very soon, maybe on Tuesday, you will have an assessment regarding pronoun agreement and construction of a sentence. So there will be three topics. I will let you know on the group. और हम उस जो assessment होगी उसको online ही लेंगे live session में. Previously, what we used to do is we used to give a questionnaire to everyone on the group. But now we will not give a questionnaire to everyone on the group. We will prepare a questionnaire and we will have it live in the session so that we can record it as well. अब तीन रूल है पॉडकास्ट के. ओनली वन माइक एट ए टाइम. रेज योर हैंड बिफोर यू रेज योर वॉइस एंड everyone should participate. So these are the three rules that you need to understand. Before I start this, is there anyone who has to say something, or is there anyone who wants to understand something from the previous sessions? तो चलो हम शुरू करते हैं. So this is the we will understand chess vocabulary today. Okay. uh, so this is the chess vocabulary. Okay. So this was not meant to be appearing like this. मैंने ऐसे सोचा नहीं था होगा, बिकॉज आज मैं दूसरा सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो उसकी सेटिंग्स थोड़ी सी हिली हुई है. तो चेस में क्या है? सी, चेस इज एक बोर्ड गेम. It has 32 pieces all over, divided into two teams, black and white, or black and cream, or brown and white. तो चेस का फंडा क्या है? इसमें दो प्लेयर्स खेलते हैं. एवरीवन हैज his own team of 16 pieces, and among these 16 pieces, these are the categories of pieces that he has: 8 pawns, 2 rook, two kings are there on the sorry, 8 pawns, 2 rooks, 1 king, 1 queen, 2 bishops, and 2 knights are there for each player. हर एक प्लेयर को ये चीजें मिलती हैं और दो टीम्स में डिवाइड होता है, और आज इसी की वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे. सी, the thing is, pawn is noted by P, rook by R, knight by N. KT is an obsolete nomination for knight. KT पहले यूज होता था knight के लिए. ये जो है ना, ये रहा KT, ये ऑब्सोलीट हो गया. अब मॉडर्न गेम्स में आप KT कहीं नहीं देखोगे लिखा हुआ. N देखोगे लिखा हुआ जब भी चेस की बात होगी. देन Q for queen, B for bishop, and K for king. The point is, rook king, rook queen, these two are pieces with great powers, which are considered to be very
valuable pieces, whereas knight and bishop are light and pawns are lightest. But the thing is, pawn जाकर आपको queen फिर से दिला सकता है अगर आपकी queen की death हो जाए game में. So it's a mind game. मजेदार गेम है. दो टीम्स में डिवाइड होती है. आई होप आप सबको मालूम ही होगा. ये रहा इसका बोर्ड. So this is the chess board. It has 64 squares, alternatively divided into dark and light squares. और इस इनकी नॉमिनेशन कैसे होती है देखो. जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, these are called ranks, and the vertical columns are called files. A से शुरू होती हैं फाइल्स, H तक जाती हैं, and ranks start from 1 to 8. The point is, इस वाले पॉन के लिए ये सेकंड रैंक है और इस वाले पॉन के लिए ये सेवंथ रैंक है. तो बट द थिंग इज, व्हेन यू कैलकुलेट फ्रॉम ब्लैक साइड, जब भी आप कभी चेस की ऑनलाइन गेम देखोगे या ऑफलाइन गेम देखोगे, आप हमेशा देखोगे कि आपकी तरफ वाइट पीसेस होंगे, अनलेस यू चूज टू प्ले विद द ब्लैक पीसेस. आप अगर ऑनलाइन भी खेलते हो, अगर आपको ब्लैक भी मिला, तब भी आप इस तरह का देखोगे कि जब भी आप किसी चेस का डेमो देखोगे तो आपकी तरफ व्हाइट पीसेस को रखा जाएगा और ब्लैक हमेशा ओपोनेंट को कंसीडर किया जाता है. तो जब भी आप चेस की रेटिंग लिखते हो या चेस का स्कोर लिखते हो या चेस की हिस्ट्री लिखते हो किसी लाइव गेम में, या चेस के रिगार्डिंग कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तो व्हाइट पीसेस को आप हमेशा अपनी तरफ रखते हो, जैसा मैंने अभी किया हुआ है इस बोर्ड में. और व्हाइट पीसेस का जो रैंक है वो 1 से स्टार्ट होता है और ब्लैक पीसेस का रैंक 8 से स्टार्ट होता है. अब द थिंग इज, फॉर दिस ब्लैक पॉन, दिस सेवंथ रैंक इज नॉट सेवंथ रैंक, इट इज सेकंड रैंक. ब्लैक पॉन के लिए ये सेकंड रैंक है, जबकि व्हाइट पॉन के लिए ये सेवंथ रैंक है. और यही रीजन है कि इन दोनों रैंक्स को बैक रैंक्स कहा जाता है. BAC के बैक, RAN के रैंक. व्हाइट के लिए ये रैंक फर्स्ट बैक रैंक है और ब्लैक के लिए रैंक 8 जो है वो बैक रैंक है. सो इतना क्लियर हुआ सबको कि रैंक और फाइल का क्या चक्कर है और बोर्ड कैसे डिवाइड होता है. ये तो बेसिक्स है चेस का. मतलब ये जिसको चेस नहीं भी खेलनी आती होगी, ही कैन अंडरस्टैंड that this is a board game. 16 players are with each guy and both of them have to defeat each other's king. तो मेन गोल इसमें ये है कि किंग को हराना है. और किंग इसमें डिनोट कैसे होता है? विद ए प्लस साइन. क्वीन का क्राउन होता है. बिशप का, जैसा हमने पीछे देखा था, बीच में कट सा होता है. नाइट इज हॉर्स एंड रुक इज एन एलिफेंट. सो जो ट्रेडिशनल हमें इंडिया में सिखाई जाती है चेस, उसमें इनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट है. बिशप को हम कैमल बोलते हैं, नाइट को हम हॉर्स बोलते हैं और रुक को हम एलिफेंट बोलते हैं. बाकी pawn and king and queen are same. Apart from that, there is very minor difference of rules in Indian standard chess and international chess. वो हम देखेंगे क्या है अभी. जैसे इंडियन चेस में जो पॉन है वो सिर्फ एक ही रैंक चलता है, बट इंटरनेशनल चेस में पॉन कैन डू 2 रैंक्स. वो 2 रैंक्स चल सकता है. इंडियन चेस में जैसे ये नंबर 2 पे जो पॉन है, रैंक नंबर 2 पे, ये पॉन या 3 पे आएगा, रैंक थर्ड में ही आएगा हमेशा. ये कभी फोर्थ में नहीं आएगा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स. बट इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से ये अपनी फर्स्ट, अगर इसकी पहली चाल है, इफ ही इज गोइंग टू प्ले हिज फर्स्ट मूव, ही कैन जंप टू रैंक 4 एज वेल. Apart from that, there are few more differences. There are some rules which are there in international chess and which some rules are there which are not in international chess but in Indian chess. अब ये चीज क्लियर हुआ सबको कि A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, D3, D4, D5 ये क्या चीजें हैं. So in order to understand the position of a piece on the chessboard, इन सबको pieces कहते हैं हम. So in order to understand the position of a piece on a chessboard, we need to understand the position of the square on which that piece is. And in order to get that position, we have to use this nomenclature. We first name the file and then we name the rank. अगर मैं बोलता हूँ कि इस वक्त white king कहाँ है, तो वो E1 पे है. So white king is there on E1.
that means E will be the file and 1 will be the rank. Is it clear to everyone? मेरी Yes, आवाज sir. आ रही है या मैं बोल रहा Yes, हूँ sir. ऐसे ही? We can hear. ओके, तो ये तो था बेसिक्स बिल्कुल चेस का। अब बड़ी बात ये है कि मैं आज आपको रूल्स नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा चेस खेली कैसे जाती है, बट मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपके सामने एक चेस गेम का हिस्ट्री आ जाए या चेस गेम का स्कोर कार्ड आ जाए, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन दैट गेम ऑफ चेस। उसके लिए आपको चेस का नॉमेनक्लेचर सीखना है कि चेस में टर्मिनोलॉजी या नॉमेनक्लेचर है क्या, कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं चेस में, और उसकी नोटेशन, उसको लिखा कैसे जाता है। तो वो चीजें मैं आपको उसका बेसिक्स आज बताऊंगा इस वाले सेशन में। सो लेट्स गो to the first one. So this is, see this video and try to understand what is happening here. See this video. तो ये इतना ही है, ये कौन मुझे बताएगा कि यहाँ हुआ क्या? Who will let me know? फैसल? या Actually, I haven't played chess in my life, so it कोई is बात नहीं। it So is the thing is, difficult teamwork. नो इश्यूज, नो इश्यूज, आई लेट यू नो। देखो, ये जो यहाँ हो रहा है ना, ये इंडियन चेस में आप कभी नहीं देखोगे। दिस इज कॉल्ड कैसलिंग। ये जो किंग दो, यहाँ पर क्या है, किंग ने, व्हाइट किंग ने दो ब्लॉक्स चले, दो स्क्वायर्स एक साथ चले, और सेम ब्लैक किंग ने भी चले, बट व्हाइट किंग ने किंग साइड पे चला। सी व्हाट व्हाइट किंग डिड इज, व्हाइट किंग मूव्ड टुवर्ड्स राइट, एंड दिस इज कॉल्ड किंग साइड, whereas black king, he moved towards left, and he in a way he covered larger distance, उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, हालांकि दो स्क्वायर ही चला है वो, बट वो लंबी साइड पे चल पड़ा। सो दिस इज कॉल्ड कैसल। इस तरीके को बोलते हैं हम कैसल। और इसकी डेफिनेशन है कि a simultaneous move, the only one in the chess, so the only one in the chess means कि ये एक ही बार चला जा सकता है, बार बार नहीं कर सकते, whereby previously unmoved king moves two square towards an unmoved rook, and the rook is moved to the other side of the king. अब हुआ क्या है कि किंग जो है वो दो स्क्वायर चलता है टुवर्ड्स एन अनमूव्ड रुक, तो ना किंग पहले चाल चला होना चाहिए और ना रुक चाल चला होना चाहिए। मतलब आपका हाथ ही जो है वो अपनी जगह से नहीं हिला होना चाहिए, और आपका किंग भी अपनी जगह से नहीं हिला होना चाहिए। ओनली देन यू कैन डू कैसल, एंड दिस इज a रूल फॉर इंटरनेशनल चेस, दिस इज नॉट देयर इन इंडियन चेस। इंडियन स्टैंडर्ड चेस में आप ये रूल नहीं देखोगे। और इसको लिखा कैसे जाता है, सी, इफ देर इज डबल ओ, ओके, डबल ओ मीन्स कैसलिंग इज ऑन किंग साइड, शॉर्ट साइड पे कैसल हुआ है। किंग दो रैंक, दो फाइल्स चला राइट पे, और अगर ट्रिपल ओ है तो किंग जो है आपका वो 3 रैंक चला है, वो भी चला 2 रैंक है, बट ही वेंट टू द क्वीन साइड, सो ही कवर्ड ए लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस वाइट किंग। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ब्लैक हमेशा लेफ्ट ही करेगा, ब्लैक भी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जैसे उसको गेम खेलनी आगे उस तरह से वो कैसल कर सकता है। तो ये थी पहली टर्मिनोलॉजी। जब भी आप किसी स्कोर कार्ड में डबल ओ देखोगे तो समझ लेना कि द किंग मूव टुवर्ड्स किंग साइड, एंड इफ यू सी ट्रिपल ओ देन द किंग हैज कैसल्ड टुवर्ड्स द क्वीन साइड। अब बात ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये किंग साइड कौन सी और क्वीन साइड कौन सी, या फिर हाउ विल वी अंडरस्टैंड दैट इफ माय बोर्ड इज प्लेस्ड इन द करेक्ट position or not? See, if just understand one thing, if you are playing with white, at the right side of your at the right hand side of you there must be a white square। ठीक है, तो एच फाइल पे हमेशा आपका व्हाइट स्क्वायर होना चाहिए। यहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका बोर्ड जो है वो सही जगह है। और दिस इज कॉल्ड किंग साइड, ई एफ जी एच, दीज फोर आर कॉल्ड किंग साइड, एंड डी सी बी ए और ए बी सी डी, दीज आर कॉल्ड
क्वीन साइड। क्लियर है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। द नेक्स्ट इज आई गेस, हाँ, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। सी दिस थिंग, द क्वीन शी इज इन द डायगोनल ऑफ द किंग, ठीक है। सो द वाइट किंग इज देयर एंड द क्वीन इज ऑल्सो ऑन द सेम डायगोनल। तो इस इसको हम क्या बोलते हैं? Check. चेक। ये किसने कहा? Mariam. मरियम, ग्रेट। सो दिस इज कॉल्ड चेक। अब a move which attacks the opposing king, और चेस का ऐसे भी गोल ये है कि यू हैव टू कैप्चर द ऑपोजिट किंग, ओनली देन यू कैन विन। अब इसको नोट कैसे, इसकी नोटेशन क्या है? सी, जब भी आप चेस का स्कोर कार्ड देखोगे तो सबसे पहले देखोगे आप चाल से पहले एक नंबर लिखा होगा और उसके आगे एक डॉट होगा। सो दिस नंबर इंडिकेट्स कि चाल कौन से नंबर की है। और हर चाल में दो मूव्स होते हैं, क्योंकि पहली चाल व्हाइट की होती है और फिर ब्लैक की। So this is how it is calculated. The first move is attack, the second is defense, or the second can also be an attack as well. जैसे कि यहाँ हुआ है। So the number 9 indicates that this is the ninth move of this game, e4. तो बात ये है कि जब भी पॉन्स मूव करते हैं तो पॉन्स के लिए हम स्पेशल नोटेशन नहीं देते, हम सिर्फ स्क्वायर की पोजीशन बताते हैं। तो e4 का मतलब है कि देयर वाज ए पॉन हु इज ऑन e3 एंड ही मूव टू e4। ये व्हाइट वाला पॉन e4 पर आ गया। और पॉन्स की मूवमेंट पे चेस की गेम में हमें कलर या क्या उसकी प्रीवियस पोजीशन हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज पॉन्स कैन ईदर मूव वन स्क्वायर और ही कैन मूव टू स्क्वायर्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ इट्स गेम। वो एक बार वन स्क्वायर मूव कर गया, फिर वो दो स्क्वायर्स कभी मूव नहीं करेगा, वो वन स्क्वायर ही मूव करेगा, इधर डायगोनली और इन स्ट्रेट लाइन। तो e4 means the white pawn has moved from e3 to e4. This is file number E and this is rank number 3 and rank number 4 and the black queen. So queen दो है और queen है भी special है, so queen will have a color. So this is black queen has moved to c5. अब वो पहले कहीं पे भी थी, अब वो c5 पर आ गई है and this is how the plus sign indicates that she gives a check to the king. तो ये नोटेशन समझ आई सबको? This is the ninth move. White pawn moved to e4 and black queen moved to c5 and gives a check to the white king. अब white king यहाँ क्यों नहीं है? White king इस नोटेशन में इसलिए नहीं है क्योंकि चेस की गेम में दो ही किंग है, यहाँ ब्लैक या व्हाइट। और अगर ब्लैक क्वीन मूव करी है और ब्लैक क्वीन के आगे प्लस का साइन है, दैट मीन्स शी इज गिविंग ए चेक टू द व्हाइट किंग। दिस इज अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई देयर इज नो नोटेशन ऑफ ए किंग इन दिस nomenclature or in this score card. तो ये चीज क्लियर हुआ सबको कि कैसे लिखा जाता है? Anyone has any? चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। we'll see the next one. Okay, so this is checkmate. See, the queen has a support from bishop. This black queen has a support from bishop and ये सीधा ही किंग के बिल्कुल मुंह के सामने आ गई। सो क्वीन का जो सर्कल होता है, किंग फॉल्स इन दैट सर्कल। क्वीन कैन मूव डायगोनली एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो किंग जो है वो बिल्कुल उसके एरिया या स्कोप ऑफ अटैक में आ गया है। सो क्वीन इज ऑन जी फाइल एंड this king bechara white king is on h file and this is a checkmate. So checkmate means a move which leaves no other option to the opposing king. तो checkmate होता क्या है? इसकी definition है a move which attacks the opposing king and which the opponent cannot get rid of. अब इससे बचत नहीं है इस king की, ये king इस attack से कभी बच नहीं सकता। So that's why it's a checkmate. तो ये दिखाता है कि किंग हार गया, व्हाइट किंग हार गया। अब व्हाइट किंग हार गया, इसको लिखेंगे कैसे? दिस इज सी दिस नंबर, दिस इज मूव नंबर 18th. सो ए
एक्स बी थ्री। ए एक्स बी थ्री का मतलब हुआ कि एक पॉन था ए पोजीशन पर, ए रैंक पे, सॉरी ए फाइल पे, और उसने कैप्चर किया बी थ्री स्क्वेयर। सो बी थ्री स्क्वेयर इज दिस, जहां पर अभी ये नाइट है, और this queen g1 hash. So g1 is the position of the queen, hash means she has given a checkmate to the opposing king, और queen का कलर ब्लैक है, इसका मतलब opposing king white है, and white king has lost his game. This is 18th move. White pawn at a2 captures the black pawn at b3, and black queen moves to g1 and checkmates the white king. So this is how you write about a checkmate with the hash. If there is a check, you use the symbol plus. If there is a checkmate, you use the symbol hash. Clear है? चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट इज डिफेंस। अब डिफेंस क्या होगा चेस में? Who will let me know? ऐसे ना सेशन बोरिंग हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर रहा है। किसी को नहीं मालूम चेस में डिफेंस क्या होता है? ये तो रेगुलर सेशन हो गया, फिर पॉडकास्ट का हुआ, इफ ओनली आई एम देयर द वन हु इज स्पीकिंग। चलो मैं बता दूं आपको। सी डिफेंस इज एन ओपनिंग प्लेड बाय ब्लैक और सीरीज ऑफ मूव टेकन टू प्रोटेक्ट अ पीस और पोजीशन व्हिच इज अंडर अटैक। तो अटैक का कोई भी रिप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड डिफेंस। आफ्टर दैट सी देयर इज अनदर वीडियो, यहाँ पर समझो क्या हो रहा है। दिस, लुक एट दिस पॉन, इसने क्या किया? ओके, इसने व्हाइट पॉन को कैप्चर किया ब्लैक पॉन ने, एंड ऑटोमेटिकली एक चेक मिल गया व्हाइट किंग को। सो व्हाट इज दिस मूव कॉल्ड? दिस मूव इज कॉल्ड डिस्कवर्ड अटैक और डिस्कवर्ड चेक। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। डिस्कवर्ड इसका नाम क्यों है? बिकॉज ये डिस्कवर किया गया बाद में। ये जब ब्लैक पॉन हटेगा यहाँ से, तो ये एक डिस्कवर्ड चेक होगा फॉर द व्हाइट king. That is why this is called discovered check. So discovered check is a check given by a line piece. Line piece मतलब दो पीसेस एक ही लाइन में, और इसको चेस की लैंग्वेज में बैटरी कहा जाता है। जब भी दो पीसेस जो सिमिलरली मूव करते हो, जैसे दो रुक्स अगर एक लाइन में आएंगे, तो वी विल से दिस इज अ बैटरी ऑफ रुक्स। या एक रुक और एक क्वीन एक लाइन में आ गए, so we will say this is a battery of rook and the queen, या क्वीन एंड बिशप एक ही लाइन में आ गए या एक ही डायगोनल पे आ गए, वी विल से दिस इज अ बैटरी ऑफ ए क्वीन एंड अ बिशप। तो जब भी लाइन पीसेस हो, लाइन पीसेस इज एनी पीसेस व्हिच आर ऑन द सेम डायगोनल और इन द सेम लाइन, सेम फाइल और सेम रैंक। ठीक, सो लाइन पीस व्हेन a check given by line piece when a shielding piece or pawn is moved out of the way। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्कवर चेक। और इसको हम दिखाते कैसे? इसको हम ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। देखो ये था मूव नंबर 7 में, क्वीन h4 पर आई थी। सी दिस ब्लैक क्वीन कम्स टू h4, देन मूव नंबर 8। अब कोई भी मूव स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद द व्हाइट, इट इज प्लेड विद व्हाइट। सो f5 means this rook f5, see this is f5, ये position f5 की, and this rook at rook goes to c2, ये रहा c2 आपका, g cross h2, so g cross h2 means g captures h2। अरे ये कहाँ चला गया? give me 1 second। हाँ, so g cross h2 means g captures h2। तो ये जो पॉन था, pawn this pawn, the black pawn which was here at g3, this pawn captured h2। और उसके बाद प्लस का साइन है, that means there is a check। but see, since this is a discovered check, that is why the queen, black queen, is mentioned outside the brackets।
ये समझ आया सबको कि डिस्कवर्ड चेक है तो जिसका डिस्कवर्ड चेक होगा वो ब्रैकेट्स के बाहर आएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन या बोरिंग हो गया आज? No, it's not a boring. Quite interesting. थोड़ा सा मार्क लग रहा है. चलो. Interesting. I'm not getting actually any response from you guys today, so this is how what makes me think that it might be getting boring. But let's continue with the session. After all, I'm also learning something. चेस को कभी लाना नहीं चाहिए पढ़ाई में, वरना बोरिंग हो जाता है. तो let's come to the next. This is opening. So what is opening? The start of a game, about a dozen moves. तो पहले 12-11 मूव्स जो होंगे, इट इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ ए गेम. फिर आती है मिडल गेम. मिडल गेम इज द पार्ट ऑफ द गेम विच फॉलोज द ओपनिंग. और ओपनिंग के बाद जो भी गेम आएगी दैट इज कॉल्ड द मिडल गेम. एंड देन देयर इज एंड गेम. ओके, तो एंड गेम का क्या है? एंड गेम इज द स्टेज ऑफ द गेम विद few pieces or with queens are when queens are exchanged, and the middle game is over and when king starts to move and attack. तो एंड गेम में क्या होता है? एक्चुअली एंड गेम 2-3 चीजों से देखी जाती है. एक पहली चीज देखते हैं कि आपके जो मैक्सिमम पीसेस हैं वो उनका एक्सचेंज हो चुका है. सो एक्सचेंज ऑफ पीसेस मींस द जब भी आप चेस खेलते हो तो आप एक दूसरे के पीसेस को कैप्चर करते हो. पॉन्स विद पॉन्स या पॉन्स विद बिशप्स या कुछ भी. आप एक दूसरे की क्वींस को मारते हो, एक दूसरे के पॉन्स को मारते हो, एक दूसरे के बिशप्स को या रुक्स को मारते हो और किंग को मारने की ट्राई करते हो, किंग को कैप्चर करने की ट्राई करते हो. सो दैट दिस killing of each other's pieces is called capturing of pieces. और capturing of pieces के बाद जब आपकी क्वींस भी मर जाती हैं या क्वींस भी एक्सचेंज हो जाती हैं और किंग गेम में आ जाता है, अदरवाइज आप किंग से अटैक नहीं करते कभी भी. जब किंग भी अटैक करने शुरू हो जाता है वी कॉल इट एंड गेम. ये एवेंजर्स वाला एंड गेम है ना, वैसा ही समझो आप इसको कि जब एक्चुअल प्लेयर्स द मेन स्टेक होल्डर के जिसके होने या ना होने से पूरी गेम पलट जाए, वो गेम में आ जाए, इट्स कॉल्ड एंड गेम. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. so next is again a video. Look at it. What is it doing? Okay. ये देखा यहाँ पर क्या हुआ, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको. इस पॉन को देखना आप. दिस पॉन, दिस इसने 2 स्क्वायर जंप किया और इसने डायगोनल में आया और दिस पॉन इज कैप्चर्ड. सो इज देयर बाय एनी चांस एनीवन हु नोज व्हाट इज दिस मूव कॉल्ड? ये भी इंडियन चेस में नहीं है, ये इंटरनेशनल चेस में होता है. इज देयर एनीवन हु नोज दिस मूव? दिस मूव इज कॉल्ड एन passant. इसकी स्पेलिंग है ENPASSANT एंड एन passant में स्पेस होता है. सो ये एक्चुअली एक जर्मन वर्ड था एन passant. वहीं से ये वर्ड आया था चेस में आफ्टर 15th सेंचुरी. तो इसका रूल क्या है? रूल ये है कि अगर ये सिंगल मूव चलता दिस वाइट पॉन तो ये ब्लैक पॉन उसको कैप्चर कर लेता, बट उसने डबल मूव चला सो इट शुड बी कैप्चरेबल. पहले एक टाइम था जब ये रूल इंप्लीमेंट नहीं किया गया था इंटरनेशनल चेस में, बट नाउ दिस इज ए वेरी पॉपुलर मूव. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्पेशल मेथड ऑफ कैप्चरिंग ओनली अवेलेबल टू ए पॉन ऑन इट्स 5th रैंक. अब देखो ये जो ब्लैक पॉन था जिसने कैप्चर किया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, इसके लिए ये 5th रैंक है. ऑल्दो दिस इज रैंक नंबर 4, बट फॉर दिस ब्लैक पॉन दिस इज रैंक नंबर 5. सो ये मूव सिर्फ पॉन्स के लिए है और किसी पीस के लिए नहीं है, और ये उन्हीं पॉन्स के लिए जो 5th रैंक पर होते हैं. इसको देखो, इसको नोट कैसे डिनोट किया जाता है. यहाँ पर H4 G captures H3. So H4 is this pawn, this white pawn move to H4. ये इसने जंप मारा यहाँ H4 पे white pawn ने, और G ने H3 स्क्वायर को कैप्चर किया, बट अगेन
एन% की वजह से व्हाइट पॉन हैज लॉस्ट हिज लाइफ. So this is seventh move. White pawn at b goes to b4, kicking off the black bishop. ये जो सबसे पहले हुआ था, white pawn goes to b4, kicking off the black bishop to d6. This is d6. File number d, rank number 6. So this is d6. This is eighth move of the game. अब eighth move यहाँ से शुरू हुआ. Pawn at h2 goes to h4. Pawn h2 पे था, वो h4 पे आया. This white pawn goes to h4. एंड ब्लैक पॉन एट जी कैप्चर्स h3. ब्लैक पॉन ने g पर जो ब्लैक पॉन था उसने h3 स्क्वायर कैप्चर किया n%. और n% के आगे ब्रैकेट्स में लिखा जाता है कि किस स्क्वायर के पॉन को मारा गया, व्हाइट पॉन एट h4. सो दिस इज हाउ इट इज रिटन एंड दिस इज हाउ इट इज स्पोकन. अगर आप कभी कमेंट्री कर रहे हो चेस की तो इस तरह से होती है, दिस इज सेवंथ मूव, इस तरह से. या फिर आप लिख रहे हो तो लिखा इसको इस तरह से जाता है. ये जो स्निपेट है टेक्स्ट की, इस तरह से. चलो गोइंग टू द नेक्स्ट वन, फॉक. अब फॉक का क्या मतलब होता है? अरे फॉक कांटा, जिससे मैगी वैगी खाते हैं हम सारे. सो दिस इज एंड व्हाई इज इट कॉल्ड फॉक? फर्स्ट थिंग, व्हाई इज इट कॉल्ड फॉक? क्योंकि इसका एंड, एक एंड पे एक ही पॉइंट होता है, बट सेकेंड एंड पे इसके मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं दैट कैन मेक मल्टीपल इम्पैक्ट्स. तो इसीलिए इसको फॉक कहा जाता है, इस किचन यूटेंसिल को फॉक कहा जाता है. अब ये फॉक काम कैसे करता है? सी दिस व्हाइट नाइट, अब इसको देखो, ये जिस पोजीशन पे है यहाँ पर किंग को चेक लगा रहा है और इसके साथ साथ ही थ्रेटन कर रहा है इस रुक को, ब्लैक रुक को और ब्लैक बिशप को भी. सो दिस इज कॉल्ड फॉक. A double attack when one piece such as a knight attacks 2 or 3 pieces at once. तो इसने किंग को तो चेक किया ही किया, बट साथ साथ इसने इस रुक पे और इस बिशप पे फॉक लगाया. तो दिस इज व्हाई दिस मूव इज कॉल्ड फॉक. बट ये सिर्फ नाइट्स नहीं करते, ये बाकी सारे वो करते हैं, पीसेस करते हैं. सी आप इस ब्लैक बिशप को देखो, ये एक तरफ इस व्हाइट बिशप पे भी अटैक कर रहा है और इस व्हाइट नाइट पर भी अटैक कर रहा है. सो दिस इज आल्सो ए फॉक ऑन व्हाइट बिशप एंड व्हाइट नाइट फ्रॉम ए ब्लैक बिशप. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. सी गैम्बिट. अब गैम्बिट होता है चेस ओपनिंग इन विच ए प्लेयर ऑफर्स ए पॉन और मूर फॉर फास्ट डेवलपमेंट एंड एन अटैक. तो गैम्बिट्स अक्सर खेले जाते हैं चेस की ओपनिंग में. शुरू में आप पॉन्स अपने फ्री में सामने वाले को कैप्चर करने देते हो ताकि आपके पीसेस जल्दी डेवलप हो. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलपमेंट ऑफ पीसेस? सी जब तक आपके पीसेस सारे बैक रैंक पर हैं, दे आर अंडर डेवलपमेंट, दे आर नॉट डेवलप्ड. अगर आपका रुक एच रैंक पर है और क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट रैंक पर है या फर्स्ट रैंक पर है या 8th रैंक पर है, दैट मीन्स ही इज अंडर डेवलपमेंट और ही इज नॉट डेवलप्ड येट. जब तक वो अपनी डेजिग्नेटेड पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, वो अंडर डेवलपमेंट ही रहेंगे. जैसे ही वो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और गेम में आ जाएंगे, देन वी से दीस पीस आर डेवलप्ड पीस और एक्टिव पीस. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट इज जे अडोब. सो जे अडोब का आइडिया है किसी को ये क्या हो सकता है? दिस इज अ फ्रेंच वर्ड. दिस आल्सो केम इनटू चेस आफ्टर 18th century. और इसका यूज आजकल बहुत हो रहा है, मतलब आफ्टर दिस कार्लसन मैग्नस द ग्रैंड मास्टर डिफीटेड सम अदर ग्रैंड मास्टर्स, ये पीस का, इस चीज का बहुत ध्यान रखा जा रहा है. सो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. इंटरनेशनल चेस में एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं टच एंड प्ले. कि आपने जिस पीस को टच किया अब आपको वही चलना है. और दूसरी चीज वहाँ क्लॉक होती है. सो क्लॉक क्या करती है? एक ब्लिट्स गेम होती है. ब्लिट्स गेम में हर एक प्लेयर को एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपने मूव्स चलने होते हैं और 40 मूव्स तक उसको टाइम लिमिट होता है. 40 मूव्स के बाद उसको डिले मिलता है. मतलब 40 मूव्स के बाद उसको टाइम का चक्कर नहीं, लेकिन 40 मूव्स से पहले उसको उतने ही टाइम में वो 40 मूव्स कंप्लीट करने हैं. सो एक ब्लिट्स चेस होती है, एक बुलेट चेस होती है, एक फास्ट चेस होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड चेस बोलते हैं.
सो बुलेट चेस जो होती है उसमें 3 मिनट का टाइम होता है कि दोनों प्लेयर्स के पास 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर अपनी सारी चालें चलो और सामने वाले को हरा दो। अब ब्लिट्स में क्या होता है कि अगर आप अपने पीस को हाथ लगा रहे हो और लेकिन आपने उसको चलना नहीं है, आप उसकी सिर्फ पोजीशन सेट कर रहे हो बोर्ड पे, तब हम इस फ्रेज को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जे एडोबे, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, आई एडजस्ट, set to indicate an intention only to adjust a piece on board without necessarily moving it to a different square. तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि चेस का जो रूल है टच एंड प्ले, उस अगर आपका कोई पीस अपने स्क्वायर से थोड़ा सा आगे पीछे है जिससे सामने वाले को ये अंदाजा हो सकता है या फिर उसको एक गलती लग सकती है कि हाँ ये H5 H3 पर है या H2 पर है, तो आप उसको एडजस्ट करने से पहले बोलोगे या आई एडजस्ट बोलोगे उसको, या फिर उसको आप बोलोगे जे एडोबे. So जे एडोबे is a French phrase which is added into chess after 18th century. Next is minor pieces. So पीस जो होते हैं ना, इनकी दो कैटेगरीज होती है. एक होते हैं माइनर पीस. माइनर पीस मतलब ऐसे पीसेस जिनकी पावर्स थोड़ी सी कम है. इसमें आते हैं नाइट और बिशप. फिर आते हैं मेजर पीसेस. मेजर पीसेस में होते हैं रुक एंड क्वीन, और फिर सारे के सारे पीसेस को हम बोलते हैं मैन. तो आई एम लूजिंग माई मैन इन चेस, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे मर्द जो है या फिर मेरे भाई बड़े या मेरे फादर वो हार रहे हैं चेस में. इसका मतलब है कि मेरे जो पीसेस हैं गेम के, जो मेरी टीम है उसके जो हिस्से हैं वो खत्म हो रहे हैं. सो हर एक पीस को मैन कहा जाता है. ये एक फ्रेज बड़ा यूज होता है कि यू लॉस्ट ऑल योर मैन इन चेस. तो ऑल योर मैन का ये मतलब नहीं है कि मेरे जितने वर्कर हैं वो सारे हार गए. इसका मतलब है कि मेरे जो 16 पीस थे उसमें से मैक्सिमम पीसेस में हार चुका हूँ, वो कैप्चर कर लिए गए हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पिन. अब पिन का फिनोमेनन देखो क्या है. सी दिस ब्लैक pawn, it has a fork on white bishop and white knight. इन दोनों को ये कैप्चर कर सकता है, बट ये करेगा नहीं. करेगा क्यों नहीं? बिकॉज जैसे ही ये मूव करेगा क्वीन इसको किंग को अटैक कर देगी और ये गेम ब्लैक यहीं पे हार जाएगा. अब दिस इनएबिलिटी टू मूव इज कॉल्ड पिन. अब इसको चेस की गेम में हम कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं द व्हाइट क्वीन हैज पिन्ड द ब्लैक पॉन. इसकी डेफिनेशन है व्हेन ए पीस डज नॉट मूव बिकॉज टू डू सो वुड expose a more valuable piece to capture. अभी ये किंग के साथ है, बट यहाँ अगर क्वीन होती तो तब भी ये मूव नहीं करता, बिकॉज उसको पता उसकी क्वीन चली जाएगी. और इसको लिखा कैसे जाता है? इसको इस तरह से लिखा जाता है. सी दिस इज 36 मूव, बट ये पिन 37th मूव पर हुआ. अब क्योंकि ये पिन हुआ इसीलिए यहाँ पर सिर्फ व्हाइट का मूव लिखा गया है. 37 पे क्वीन मूव टू C4. दिस इज C एंड दिस इज 4 एंड दिस पिन्ड दिस पॉन. तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है. इसको हम ऐसे लिख सकते, दिस इज मूव 37th, white queen moves to C4 and pins the pawn at C6. So this is how you write about a piece getting pinned. Now once again another video. अब देखो इस वीडियो में क्या हो रहा है. सी इस ब्लैक पॉन को देखो, ये जैसे ही बैक रैंक पे पहुंचा, जैसे ही ये अपने 8th रैंक पे पहुंचा, ये कन्वर्ट हो गया किसी पीस में. अभी यहाँ पर इसने क्वीन चूज की, बट ही कैन चूज एनी ऑफ द मेजर और माइनर पीसेस ही वांट. इसको देखो, देखा. सो इंटरनेशनल चेस में क्या होता है? इंटरनेशनल चेस में आपको चॉइस होती है. अगर आपका पॉन बिल्कुल बैक रैंक पे पहुंच जाता है सामने वाली टीम के, तो वो प्रमोट करता है खुद को एक पीस में. लेकिन इंडियन चेस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सिर्फ क्वीनिंग होती है. क्वीनिंग मतलब वो पॉन अगर लास्ट रैंक पर पहुंच गया तो वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगा. बट इंटरनेशनल चेस आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है. इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से आप उसको क्वीन, बिशप, रुक या नाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा यहाँ हो रहा था. So this is called queening or promotion. So what is promotion or queening? Promotion is what happens when a pawn reaches the other side of the board. What is the 8th rank? तो pawn जब 8th rank पे पहुंच जाएगा दूसरी साइड पे and cannot move further, और फिर इसके आगे उसको जाने की कोई जगह नहीं रहेगी, then it becomes any piece on the board.
एक्सेप्ट द किंग, तो किंग को छोड़ के वो कोई भी पीस बन सकता है. प्लेयर्स यूजुअली प्रमोट देयर पॉन्स टू ए क्वीन बिकॉज क्वीन इज द मोस्ट पावरफुल पीस ऑन दिस बोर्ड. और इंडिया में इसको क्वीनिंग कहा जाता है. तो और इसको दिखाया कैसे जाता है, सी दिस इज मूव नंबर 38 वेयर, चलो मैं आपको 37 से दिखाता हूँ, जैसे जहां से ये वीडियो शुरू हुई है. सी 37 पे क्या हुआ है, द क्वीन गोज टू C4 एंड पॉन गोज टू H2. ये पॉन जो है ये H2 पर आया. फिर मूव नंबर 38, मूव नंबर 38 में जो रुक था दैट मूव टू सॉरी दिस रुक मूव टू B4. इसने कैप्चर किया था B4 को. देखो ध्यान से, X का मतलब होता है कैप्चर करना. So this rook this captures this knight at B4. Okay, and this one promotes itself into a queen. इसीलिए यहाँ equal to का साइन है. So जब भी promotion या queening होगी equal to का साइन होगा. So this is how you write about queening or promotion, and this is how you speak about queening or promotion. 37th move queen to C4, pawn to H2. 38th move rook at B1 captures B4, pawn promotes to queen on H1. और एक पॉइंट है इसमें नोट करने का कि कैप्चर्स B4 के टाइम हमने क्यों नहीं कहा कि कैप्चर्स द नाइट एट B4. हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि जब मूव नंबर 36 लिखा गया था उस टाइम इस नाइट की पोजीशन ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई थी कि नाइट है, ब्लैक नाइट है इस पे क्या बोलते हैं इसको B4 पे. इसीलिए कैप्चरिंग के टाइम उसके बारे में लिखा नहीं गया. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज रिजाइन. अब रिजाइन क्या होता है, सी दो प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं. अब एक प्लेयर को अच्छी तरह दिख गया, उसने अपने माइंड में पूरा बना लिया कि हाँ अब अगली चाल नहीं चल सकता वो, तो जस्ट टू गेट रिड ऑफ द एम्बेरसमेंट ऑफ लूजिंग द गेम ही रिजाइंस. अब रिजाइंस वो रिजाइन करते कैसे हैं, या तो वो उठ के हाथ मिलाएगा सामने वाले प्लेयर से, या वो सीधा डिक्लेयर करेगा कि आई रिजाइन दिस गेम. इट्स लाइक थ्रोइंग द टॉवल इन द रिंग. कि आपको पता लग गया कि यू विल नॉट बी एबल टू प्ले मोर, to concede a loss of game, a resignation is usually done by knocking over one's king, stopping the clock, या फिर offering a handshake or saying I resign. आप घड़ी रोक दो अपनी, या अपने राजे को पलटा दो, या फिर सामने वाले के साथ हाथ मिला लो. This is called this is what happens when you resign a game. ये सिर्फ अपनी लॉस की एम्बेरसमेंट से बचने के लिए. इसके बाद है एक रूल, थ्री फोल्ड रेपिटेशन. रेजिग्नेशन की कोई नोटेशन नहीं है रिटन वर्ड्स में, हम प्रॉपरली वर्ड लिखते हैं रिजाइन. थ्री फोल्ड रेपिटेशन की भी कोई नोटेशन नहीं है. अब थ्री फोल्ड रेपिटेशन क्या होता है, चेस में एक रूल होता है कि आप कोई भी मूव कंसेक्यूटिवली 3 बार नहीं खेल सकते. अगर आप ऐसा करेंगे और इसके अलावा कोई और मूव आपके पास नहीं बचा तो सामने वाला आपको एक ड्रॉ करार दे सकता है. मतलब आप नो मैटर यू आर विनिंग और लूजिंग, द गेम इज ड्रॉ. So a player can claim a draw if the same position occurs 3 times or will occur after their next move. With the same player to move, the repeated positions do not need to occur in succession. तो रिपीटेड पोजीशंस जब भी आएंगी, और जरूरी नहीं है कि वो एक के बाद एक रिपीट होनी चाहिए, बट पोजीशंस 3 बार रिपीट हुई, सामने वाला प्लेयर आपको ड्रॉ करार दे सकता है. इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग है दैट इज सैक्रिफाइस. सी द इंटेंशनल लॉस ऑफ मटेरियल टू गेट ए मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट. अब देखो सैक्रिफाइस क्या होता है. अभी जैसे हम ब्लैक की गेम देखें, ब्लैक के पास 2 रुक्स हैं और 2 क्वींस हैं. सो क्लियरली ब्लैक विल विन दिस गेम, ऑल्दो व्हाइट के पास 2 नाइट्स हैं, एक 2 बिशप पेयर है इसके पास, और इसके सारे पीसेस हैं अभी व्हाइट के. बट ब्लैक की गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसके पास मेजर पीसेस हैं और अच्छे खासी पोजीशन पर है, फुली एक्टिवेटेड एक्सेप्ट फॉर दिस रुक. बट इस गेम में हुआ क्या, इस गेम में व्हाइट ने क्या किया, अपने पीसेस का सैक्रिफाइस दिया, जिसकी वजह से ब्लैक की पोजीशन जो है पीसेस की वो बिगड़ गई. सी पहला सैक्रिफाइस इसने अपने नाइट का दिया, इसने अपना नाइट रखा, उसके रुक ने आकर नाइट को मारा, फिर इसने सेकंड सैक्रिफाइस अपने बिशप का दिया. जैसे ही बिशप का सैक्रिफाइस हुआ इसने क्वीन का भी सैक्रिफाइस दे दिया क्वीन के सामने रखकर. सो ब्लैक की एक क्वीन तो गई, लेकिन
सडनली आप देखोगे बोर्ड पे ब्लैक की गेम जो है वो बहुत बिगड़ गई। बिगड़ क्यों गई? अब ब्लैक के पास सिर्फ दो ही पीसेज हैं, एक रुक और एक क्वीन। इससे पहले उसके पास दो रुक्स और दो क्वींस थी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम, दिस इज स्टेलमेट। अब स्टेलमेट जो है ये मेरा पर्सनल, मुझे बड़ा अजीब लगता है और बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि ये होना ही नहीं चाहिए था चेस में, बिकॉज आप गेम जीत रहे हो और सामने वाला आपको स्टेलमेट कर देगा। सो स्टेलमेट इज अ फॉर्म ऑफ ड्रॉ व्हेन ए प्लेयर इज नॉट इन चेक बट हैज नो लीगल मूव्स। तो प्लेयर को चेक नहीं है, प्लेयर को चेक नहीं लगा बट उसके पास कोई और लीगल मूव है नहीं, और ये मॉडर्न गेम्स में एक ड्रॉ कंसीडर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टेलमेट। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे है। सी दिस गेम ऑफ चेस। यहाँ पर क्या है, ब्लैक क्लियरली जीत सकता है इस गेम को, बहुत इजीली जीत सकता है, क्योंकि उसके पास दो पॉन्स हैं जो कि आगे चल के दो और क्वींस बन सकती हैं, और दो क्वींस हैं उसके पास ऑलरेडी, और व्हाइट के पास कुछ भी नहीं है, व्हाइट के पास सिर्फ एक किंग है। द पॉइंट इज व्हाइट ने यहाँ एक चालाकी की जिससे गेम स्टेलमेट हो गई। देखो, ये ब्लैक को नहीं करना चाहिए था। अब व्हाइट के पास कोई मूव बचा ही नहीं है, ना वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जाएगा तो उसको क्वीन चेक देगी, यहाँ जाएगा तो ये क्वीन उसको चेक देगी। सो लीगल मूव व्हाइट के पास कोई बचा नहीं, ये स्टेलमेट हो गया। तो एक हिसाब से हारना तो व्हाइट को था, बट यहाँ पर ये ड्रॉ हो गई गेम। दिस इज ए ड्रॉ इन मॉडर्न गेम्स, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि स्टेलमेट जैसा रूल होना नहीं चाहिए। अब लीगल मूव कोई बचा नहीं है व्हाइट के पास, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेलमेट। Coming to the other one is Zugzwang. अब Zugzwang जो है ये भी एक जर्मन वर्ड है। दिस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन चेस इन लेट 15th सेंचुरी। मॉडर्न डे चेस में होता है, जबकि इंडियन चेस में नहीं है Zugzwang, और इंडियन चेस में स्टेलमेट भी नहीं है। इंडियन चेस में वो हारा माना जाएगा व्हाइट, बट इंटरनेशनल चेस में कंफ्लिक्ट है, उसको स्टेलमेट करार दे देंगे। जुग्जवैंग क्या होता है? जुग्जवैंग मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, ये एक ऐसा मूव होता है जो बहुत गंदा कंसीडर किया जाता है और जिसके बाद आप हारना शुरू हो जाते हो। सो ए पोजीशन यूजुअली इन द एंडिंग where the player to move loses because they must move। तो उसको चलना ही चलना है, वो रुक नहीं सकता। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, व्हाइट का मूव है, ब्लैक के पास सबसे अच्छी क्या थी, यहाँ पर तो ब्लैक दिख रहा है कि हार हार जाएगा, बिकॉज व्हाइट का पॉन जिंदा है अभी, और ड्रॉ भी नहीं कर सकता क्योंकि कितना ही दूर जाएगा। व्हाइट का पॉन ऑलरेडी 7th रैंक पे है, जैसे ही वो 8th रैंक पे पहुंचेगा वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट द थिंग इज, अगर किंग समहाउ इसी आसपास ही रहे और व्हाइट किंग इसके पास ना आए, तो ये ब्लैक किंग इसकी प्रमोशन को खा जाएगा, इसको कैप्चर कर लेगा। बट व्हाइट ने यहाँ क्या किया, व्हाइट ने इसको सपोर्ट दी ऐसे। अब व्हाइट ने यहाँ पर इसको सपोर्ट दे दी, इसके पास सिर्फ एक ही मूव है, ये इधर नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता क्योंकि किंग इसको मार देगा, यहाँ नहीं जा सकता, पॉन मार देगा, यहाँ नहीं जा सकता, पॉन मार देगा, यहाँ आएगा, और यहाँ इसको नहीं आना है। यही एक स्क्वायर है जो इसके पास बचा है, और ये यही नहीं आना चाहता था। यहाँ क्यों नहीं आना चाहता था? इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि ये जैसे ही यहाँ आएगा ये क्वीन में प्रमोट हो जाएगी। अब इसके बाद ये क्या करेगा बेचारा, ये यहाँ से भागेगा और ये बन गई क्वीन। as soon as this pawn becomes a queen, the chances of losing becomes extremely severe for this black king। इसीलिए इसको हम ज़ग्ज़वैंग बोलते हैं। ज़ुगज़वैंग जर्मन वर्ड है, 15th सेंचुरी में आया था। इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि एक ऐसा मूव जो चलना नहीं चाहिए, जो बहुत गंदा माना जाता है, फिर भी आपको चलना पड़ेगा क्योंकि और कोई मूव है नहीं, और इसकी वजह से आप गेम हारो या जीतो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी गेम बिल्कुल खराब हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ज़ुगज़वैंग। सो आई होप ये सेशन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहा होगा सबके लिए। हाँ, मुझे पता है बोरिंग है आज का सेशन बहुत, चेस में किसी को इंटरेस्ट है नहीं, वो दिख गया मुझे बहुत अच्छी तरह से आज। आई विल नेवर इंट्रोड्यूस चेस इन एजुकेशन अगेन, बट ऑफलाइन सेशन में ये बड़ा मजेदार रहा था। सो लेट्स कीप इट दिस मच। इज देयर एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन? जो मूव है वो काउंट कैसे होता है? मतलब जब मेरा मूव है तो वो काउंट होगा, तो जो नेक्स्ट लेगा उसका एक हुआ, मेरा वन और उसका टू। मैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि मूव्स काउंट कैसे होते हैं। मूव्स क्या,
मूव्स ना हमेशा दो चाल के साथ काउंट होते हैं, और चेस में हमेशा व्हाइट पहली चाल चलता है और ब्लैक दूसरी चाल चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तक हमने जो भी चाल इसमें ये दिखाई हैं, जहां पर मैं आपको एक नोटेशन से एग्जांपल देता हूँ। यस, सी दिस नोटेशन। मूव नंबर 37 पे पहला मूव व्हाइट का है और दूसरा मूव ब्लैक का है, ठीक है। एंड मूव नंबर 38 पर भी पहला मूव व्हाइट का है और दूसरा मूव ब्लैक का है। 38 को देखो ध्यान से, रुक ने कैप्चर किया B4 को, रुक यहाँ था, उसने कैप्चर किया B4 को, B4 पे इस टाइम ये नाइट है। और H1 इक्वल टू क्वीन। H1 मतलब यहाँ पर एक ब्लैक कलर का जो पॉन है वो H1 पर आ गया और वो क्वीन में कन्वर्ट हो गया। सो दीज टू चार्ल्स आर कंसिडर्ड टू बी वन मूव। ये एक मूव लिखा जाएगा। एक मूव में दो चालें होती हैं। लिखते टाइम ऐसे तो हम बोलते हैं कि इट्स माई मूव और इट्स योर मूव। मेरे सामने अगर आप चेस खेल रहे हो तो एक मूव मैं करूंगा, फिर एक मूव आप करोगे। लेकिन जब लिखा जाएगा तो शुरू में ब्लैक का मूव होगा और फिर सॉरी 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 शुरू में पहले व्हाइट का होगा फिर ब्लैक का होगा। फिर ब्लैक का होगा, और इन कॉम्बिनेशन को एक सेट बनाकर एक मूव का नाम दिया जाएगा, जैसे मूव नंबर 37, मूव नंबर 38। सो 37 में व्हाइट की भी चाल है और ब्लैक की भी चाल है, 38 में व्हाइट की भी चाल है और ब्लैक की भी चाल है। तो इस तरह से मूव्स को लिखा जाता है और इस तरह से मूव्स को रीड किया जाता है। इससे क्लियर। Is there anyone who has any question? Or by the way, Rakshanda, let's have a discussion with you today regarding your workshop. I attended that workshop and I'm very happy to attend that. I learned a lot of things. So how was your experience of giving that open workshop to everyone? So it's something new for me actually. And thank you कि आपने attend किया वो session मेरा. So actually first day तो I was quite nervous, but second day I'm confident. तो एक new experience था और अच्छा भी लगा लोगों से interact करके. After submission मतलब आज मैंने अपना जो भी मेरे जो स्टूडेंट्स का सबमिशन आया था वो भी सबमिट करवा दिया, तो सबमिशन भी काफी अच्छा आया है सबका। तो एक और ऊपर से जो उन्होंने जो है फीडबैक्स दिए वो भी बहुत मतलब एक वो है ना पॉजिटिव एक पुश मिलता है मोटिवेशनल कि आप कुछ और अच्छा करो। तो वैसा है कि नाउ आई नो दैट नाउ आई एम डूइंग समथिंग बेटर कि जिससे लोगों ने भी कुछ सीखा। तो टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है कि इज इट डूएबल और कोई दिक्कत आएगी? नेटवर्क इशू होता है यहाँ पे एक मेन जो है, बाकी लाइक आई नीड समवन जो कि वो कैमरा एडजस्टमेंट करे वो सब वो है थोड़ा सा, बाकी नहीं, बाकी अच्छा जाता है, इंटरेक्टिव होता है। And most of the guys who have attended your session were from South India, right? Yes sir, they are South Indians. I kind of figured it out. I've seen someone Actually, something over there. yes sir, actually they show more interest in these things, handmade things. Even they are pushing me like, ma'am please conduct some other workshop, please ma'am next week. So I just told them कि अभी time नहीं है मेरे पास। So this brings me to my next question. कि अब आप उसको नेक्स्ट कब शुरू कर रहे हो, या फिर बाकी लोग जो इंटरेस्टेड हैं इसमें ऑलरेडी उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? इज देयर एनी प्लान दैट आई विल स्टार्ट दिस सेशन वंस अगेन? या सी जैसे मेरे से कोई पूछता है ना अभी के आप राइटिंग का सेशन हमें कब दोगे, तो आई हैव प्लान्स फॉर दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दोस जर्नलिस्ट इनटू दीस सेशंस so that they can give a brief idea about what communication skills do you require to become a journalist or to become a writer. तो उस तरह से आपका क्या प्लान है? Is there any are we going to see more open workshops like the one you have earlier, or? Yes sir, yes sir. In the next month I'm going to arrange. And what about those who have not attended your session and want to see what all has been done over there? Yes sir. Can you share your link? आप किसी तरह उनको दिखा सकते हो? Yes sir, मैंने actually I had Facebook link, but
I don't know I can share it with all because like हमारा CMDI की तरफ से वो होता है, I can मुझे understand. That परमिशन was a लेनी private पड़ेगी group. उसके लिए. I was Yes, it's a closed group. so it was shared over a group. I don't think so. It's publicly available, but No, sir. let's Like say. it's only available to those who are joined in that group. Okay, okay. So I just pray that things like these should be publicly available to everyone. Mm, so Baki, best of luck. I was really honored and I was pleased to understand what all you were teaching over there. मेरे को तो बड़ा मजा आया और आई Thank you बिलीव so much, बाकियों को sir. भी बहुत मजा आया होगा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट मैंने पेंगुइन्स बनाना शुरू कर दिए ऑलरेडी तो Thank you so much, sir. कोको कोला मोमेंट राइट नाउ अगर आप बोलना चाहते हो अपने ग्रुप के बारे में या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो प्लीज गो ऑन एंड देन वी विल एंड दिस सेशन टुडे So whoever be interested, they can ping me. I share my WhatsApp number also, so they can ping me so that they learn and explore their skills in art also. It's not like कि हमेशा पढ़ाई में ही सब कुछ हो. Something हमें चाहिए होता है कि हम अपने आप माइंड को भी रिलैक्स करें. So that art is, I guess, I think that art is the best remedy for anything. So if anyone wants to, they are like it's welcome. I always welcome everyone. So whoever be interested, they can ping me anytime. so you can share your WhatsApp number or your email or something in the chat so that Yes, sir. everyone Yes, can sir. I send you the WhatsApp group link. ओके ओके चलो ये भी कर सकते यू कैन सेंड इट टू मी एंड आई कैन सेंड इट टू द ग्रुप Yes, sir. so thank you very much once again everyone I believe like Rakshanda there will be more people who will come out and who will make everyone happy by letting them know the kind of skill set they have apart from that as always we have been very generous we will meet on Tuesday we will not meet tomorrow because there is already a workshop which is clashing with this one एंड मेरे को उनको खत्म करना है टेक्निकल राइटिंग का मुझे अब बस खत्म करना है उनका लास्ट वर्कशॉप है तो मैं कल शायद क्या मोस्ट प्रोबेबली 90% आई विल नॉट बी टेकिंग ए क्लास टुमारो बट वी विल डेफिनेटली मीट ऑन ट्यूसडे थैंक यू एवरीवन एज ऑलवेज यू हैव बीन वेरी वंडरफुल बाय बाय